اور خبر دیں گے آپ کو 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 مجرمان کو سزائیں سنائی۔ سزائیں شواہد کی جانچ پڑتال مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی۔ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ 9 مئی کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد، جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ اس یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ بریگیڈیئر ریٹائر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ جی ہاں، دیکھیں جی یہ لانگ ایویٹڈ تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں جو واقعات جو 9 مئی کے ہوئے پاکستان کی تاریخ کے 76 ایئرس میں ایسا ہوا نہیں تھا۔ دشمن نے بہت کوشش کی، ہوسٹائل ایجنسیز نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن چند لوگوں نے پاکستان کے اندر ایسا کیا کہ جس میں آپ آرمی کی اور آرمڈ فورسز کی جو انسٹالیشن ہے 79 بنتی ہے چھوٹی بڑی، ان پہ حملے کیے گئے ہیں، اور آرمی کانوائز جہاں سے گزرے وہاں پہ پتھراؤ کیا گیا، جلاؤ گھیراؤ کے واقعات ہوئے ہیں، شہداء کی لواحقین کو اس پہ بڑا دکھ پہنچا، کیونکہ اسپیشلی آپ دیکھیں جو للک جان کا اسٹیچو ہو یا شیر خان کا اسٹیچو ہو، اور اس کے علاوہ دیکھیں جو نوجوان لڑکے شہادتیں دے رہے ہیں، آفسرس ہو یا جوان ہو وار آن ٹیرر میں، تو ان کے لواحقین اور فوج کے اندر بھی ایک ریزلمنٹ تھی جب یہ واقعات ہوئے، جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اور پھر انٹرنیشنلی ہم نے ایک بڑا غلط میسیج دیا کہ ایک منفی میسیج کیا کہ پاکستان میں ایک سول وار ہے، اور پاکستان میں جو پاکستان کی سورینٹی اور سیکیورٹی از تھریٹنڈ، ان واقعات سے پاکستان کے اثاثے خطرے میں ہیں، اور سوشل میڈیا کا بہتریک استعمال کیا گیا، اور جس میں کوشش یہی کی گئی کہ پاکستان اور پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک ویج کریٹ کرنے کی کوشش کی بٹوین آرم فورسز اینڈ دی نیشن، اور رینک اور فائل کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ دنیا مانتی تھی اور مانتی ہے کہ پاکستان آرم فورسز ایز لانگ ایز دے آر انٹیکٹ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ آرمی کو ٹارگٹ کرو۔ ہمارے سامنے واضح مثالیں ہیں، سیریا کی اب ریسنٹ مثال ہے، یمن کی مثال ہے، عراق کے پاس میں تھی، لیبیا کو آپ دیکھیں، صومالیہ کو دیکھیں، کیونکہ وہاں آرمی ختم ہو گئی تھی، میلٹ ہو گئی تھی، لیکن آپ کی آرمی جو پاکستان آرم فورسز سے انٹیکٹ ہیں، اور دنیا کے بہت سارے بڑے جو تھنک ٹینک ہے وہ مانتے ہیں، چاہے وہ اسٹیفن کوہن ہے یا کرسٹین فیئر ہے، یا بہت سارے وہ مانتے ہیں ایز لانگ ایز پاکستان آرمی از انٹیکٹ دنیا کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایسٹ سے خطرہ ہے، ویسٹ سے خطرہ ہے، انٹرنلی آپ یہ مسئلے کریں، سینکشنز آپ پہ لگ رہے ہیں، تو یہ بہت سارے ہیں۔ میرا خیال میں یہ ڈیسیجنز آر ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، یہ ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اشتر اوصاف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سر بطور ماہر قانون آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ ملٹری کورٹس میں چلنے والے کیسز میں اب جب کہ سزائیں سنا دی گئی ہیں آگے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سزائیں جو سنائی گئیں یہ تو ہو گئی نا اعلیٰ کار جو لوگ تھے، جو کردار تھے اس کے اندر، جنہوں نے یہ تنصیبات پہ خود حملہ کیا۔ دیکھیے یہ ایک جگہ تو نہیں حملہ ہوا، یہ حملہ تو مختلف جگہوں پہ ہوا، ایک ہی ٹائمنگ تھی، ایک ہی دن تھا۔ تو اس کے پیچھے کیا نظر آتا ہے؟ اس کے پیچھے نظر آتا ہے پلاننگ۔ تو پلانرز کو بھی تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کب ہوگا؟ ابھی تک جو ٹرائل تھے وہ اس لیے رکے ہوئے تھے کہ پہلے ملٹری ٹرائلز کا جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، پھر اپیل میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اس وقت تک روک لیجئے جب تک کہ جو ہے ہم آپ کو فیصلہ نہ دے دیں۔ اور پھر اب لیٹسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ فیصلے سنا دیں تاکہ وہ لوگ جن کو سزائیں ملنی چاہیے ان کو ملیں، اور جو بری ہونے چاہیے وہ بری ہو جائیں۔ اب یہ سزائیں تمام کی تمام مشروع ڈیسیژن پہ، بٹ نیورتھلیس جن لوگوں نے یہ ساری پلاننگ کی ان کو بھی تو پکڑنا چاہیے نا، ورنہ تو یہ کلوجر نہیں، اپنی کمپلیٹ جسٹس کرنی ہے، آپ نے سارے معاملات کو نپٹانا ہے، تو پھر آپ ان تک بھی پہنچیں جنہوں نے یہ فائنینسنگ کی، جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کروایا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے
जिसको हमें बिल्कुल, ये बात तो ISPR ने कह भी दी है कि जब तक मास्टरमाइंड्स जो हैं उन तक नहीं पहुंचा जाएगा, उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक सही मानों में इंसाफ नहीं होगा। देखिए, वो तो ISPR की बात है जी। वो तो एक तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं तो एक बात कर रहा हूँ तालिब इल्म की, कानून के, कि ये बातें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं अगर इसके अंदर जो कंस्पिरेटर है, जो मास्टरमाइंड है, जो कि इंस्टिगेटर है, उसको ना पकड़ा जाए। सो होपफुली वो भी जल्दी होगा और होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आज 29 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, इस भयानक दिन के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। और खबर दें आपको, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। हुसैन अहमद चौधरी से तफसीलात जानते हैं, बताइए हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार दिया है। अदालत ने देखा है कि हमारे लिए ये बात हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर-ए-आज़म लापरवाही से ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। जस्टिस सरदार एजाज खान ने ये जो है ऑर्डर जो है वो जारी किया है और उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है और ये दरखास्त जो है ये ताहिर हसन की जानिब से जो है वो दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए ये लिखा है कि रिपोर्ट के जो रिपोर्ट है उनके रहमो करम पर कैसे जो है वो छोड़ सकते हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को जो है वो कैसे रख सकते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। जजों की तैनाती से मुतालिक रूल्स पर राय भी दे दी। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत करते हुए कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन ने पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तजवीज़ पेश की कि आईनी बेंच के लिए जजों की तैनाती और तादाद का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आइन की तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अकास होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। तफसीलात जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से, बताइए राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा लिया जा रहा है और इस इजलास में आईनी बेंच में जजेस की जो मुद्दत है उसकी तोसी का मामला भी ज़ेरे गौर है। इस इजलास में क्योंकि जो इब्तदाई तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आईनी बेंच का तकर्रुर किया गया था वो 2 माह के लिए किया गया था और आज इस मामले पर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मजीद फैसला करेगा और इसके साथ साथ जो रूल्स तैयार किए गए हैं जजेस तैनातियों से मुताल्लिक उनको भी उनका जायजा लेकर उनकी भी मंजूरी का इम्कान है। आज होने वाले इजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक खत भी सामने आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का एक मैकेनिज्म बनाया जाना बहुत जरूरी है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। यकीनी तौर पर पार्टी लीडर की इजाज़त और एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग से ही मुमकिन है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर एयाज सादिक का वजीर आजम से राब्ता हुआ है।
जिस दिन वजीर आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को जो है वो गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने पार्टी लीडर से मशवरा ना किया हो या एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनका हल पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए से ही है। स्पीकर साहब का राब्ता हुआ है प्राइम मिनिस्टर से, पेशरफ जो है एक आध दिन में हो जाएगी। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो होना चाहिए। स्पीकर साहब से जो कमेटी है पीटीआई की, उसका राब्ता इस वक्त है। वो कोई केस जो है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं चल रहा, वो अदालत में है, और मैं नहीं समझता कि उसका जो भी फैसला हो उससे जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुतासर होना चाहिए। मौलाना से जिस अच्छे माहौल में वो बात हुई है, तो वो तमाम तलखी जो पिछले दिनों में आपके सामने आती रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो गई हैं। ये इशू अगले 2-4 दिन में फाहम तफहीम से हल हो जाएगा। और हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई तक अडयाला जेल में रसाई नहीं दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल को कोई ये न कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। सबसे पहली चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी, और ये उनका एक जेस्चर था कि कोई कल को ये ना कहे कि पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है मुज़ाकराती टीम को, तो आप उनकी गैर संजीदगी का मुज़ाकराती टीम बुलाई है खान साहब ने, लेकिन 5 लोग आए ही नहीं। तो जनाब वाला नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप मीडिया के लोग उसको गलत करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पे अडयाला जेल में ऐसे तो मुंह उठा के लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा टाइम होता है, सेट होता है, वहाँ पे फैसिलिटेट करना पड़ता है। जो लोग वहाँ पे गए थे उनके केसेस लगे हुए थे, वो अंडर वो केस अपने केसेस में पेश हुए हैं, या सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए हैं या अली अमीन खान साहब हुए हैं, वो अपनी केस में वहाँ पे चार्जेस उन पे लग रहे थे। ऐसे कोई नहीं जाता उधर। सर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कोई ग्रैंड लॉ तो नहीं बनाने, वो पीपल्स पार्टी वाले। रावलपिंडी डिवीजन में दर्ज 23 मुकदमात बुशरा बीबी ने जमानत की दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दायर कर दी। अदालत ने रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। वकील ने कहा इस्लामाबाद के 14 मुकदमात में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। अदालतों ने गुज़श्ता रोज तवक्को के मुताबिक इंसाफ दिया। जज साहब ने 100 वकला की मौजूदगी में कहा था 265 डी की दरखास्तों की हद तक चार्ज फ्रेम तस्वुर नहीं किया जाएगा, लेकिन आज चार्ज फ्रेम हो गया। फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी बुनियादों पर कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, कानूनी शहादत का हक इस्तेमाल करेंगे, वहां पर होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड पर होगी, वकला के बयान हलफी भी लगाएंगे। जितना कि इंसाफ इन अदालतों से मिल सकता था वो कल मिला है, तो अभी मैं उस फैसले की कॉपी लेने आया हूँ। जज साहब ने ओपन कोर्ट में जेल में तकरीबन 100 वकला की मौजूदगी में कहा कि 265 डी की दरखास्तें हैं, उनकी हद तक चार्ज फ्रेम नहीं कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने जिसमें ये कहा है कि जी चार्ज फ्रेम हो गया, तो हम ये इसको देखेंगे। इसीलिए हमने सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है, और हम वो सीसीटीवी फुटेज हर सूरत लेंगे और कानूनी शहादत ऑर्डर के तहत ये हम इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे जो गुफ्तगू वो भी रिकॉर्ड पे होगी। उसके बाद वकला के एफिडेविट्स भी लगाए जाएंगे। ये जो इमरान खान साहब और पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पे टारगेट करके की जा रही है, उसका भरपूर जो है जवाब भी देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में उमर अयूब की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में अबूरी दरख्वास्त जमानत कन्फर्म कर दी। उमर अयूब ने थाना अपारा के केस में नाम न होने पर दरख्वास्त वापस ले ली। थाना सेक्रेटेरिएट अपारा के मुकदमात पर समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मचोका ने की। एडिशनल सेशन जज राजा आसिफ थाना बाराकहू के 2, थाना कोराल के 1 मुकदमे में उमर अयूब के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 24 नवंबर एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट में 28 नवंबर से अब तक पीटीआई रहनुमाओं और मेंबरान असम्बली की 140 से जायद दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने 70 से जायद को राहदारी जमानत और 69 को हिफाजती जमानत दी। हिफाजती और राहदारी जमानत हासिल करने वालों में वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को भी हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक की हिफाजती जमानत दी।
सलमान अकरम राजा और उमर अयूब ने भी राहदारी और हिफाजती जमानत हासिल की। शहरियार आफरीदी, आतिफ खान, शहराम तरकई, आदिल बाजई और दीगर ने भी हिफाजती जमानत हासिल की है। सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, सोहेल आफरीदी और दीगर ने भी हिफाजती जमानत हासिल की। शानदाना गुलजार, जरताज गुल, डेप्यूटी स्पीकर सुरैया बीबी, फलकनाज, कंवल शौजब, आलिया हमजा को राहदारी और हिफाजती जमानत मिली। सरम जावेद, खदीजा शाह, मशाल यूसुफजई, हमीदा शाह को भी पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी और हिफाजती जमानत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आफ्ताब अहमद खान शेरपाओं से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने उन्हें केपी बिलखुसूस कुरम में पायदार अमन के लिए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आफ्ताब शेरपाओ बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनकी सियासी खिदमात के सब मोतरफ हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में केपी बिलखुसूस कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए। केपी में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम की सूरत हाल पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। कुरम का मामला बहुत हसास है। मुलाकात में कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर सिकंदर शेरपाओ भी मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं, हुकूमत से गिला है, जब मदारिस बिल एक्ट बन गया तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे। बिलावल ने भी कमिटमेंट पूरी नहीं की और खामोश हो गए। हुकूमत हर दिन अपने अमल से हमें पीटीआई के करीब कर रही है। कोशिश करेंगे इन जमातों को आइंदा हाथ करने का मौका ना दें। क्या करें, इस सिस्टम में रहना है तो फिर बात तो इन्हीं लोगों से करनी है। हुकूमत डे बाई डे हमें और उनको करीब कर रही है। जो कुर्बतें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन इसको आगे जितनी जल्दी बढ़ाना है हुकूमत की मेहरबानी है। जितनी जल्दी वो कोशिश करेंगे हम बढ़ते जाएंगे। सारी चीज़ें जब 26वीं यानी तरमीम पे हमने दोबारा इसको उठाया तो आपको पहले पता ही था ना ये सब कुछ हुआ, तो आपके इल्म में थी सारी चीज़ें। सरदार साहब बैठे हुए थे जाती उम्र में भी। पहले तो हमें सदर साहब से गिला था कि आपने इस पर ज्यादती की और एक इंतशार पैदा कर दी। अब हमें हुकूमत से गिला हो गया कि आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तासर है कौम में, रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो हम रजिस्ट्रेशन कर तैयार बैठे हैं। बैंक अकाउंट्स बंद है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन, हम तैयार है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जो वज़रा ने वफाकी काबीना में वोट दिया, सेनेट और कौमी असम्बली में वोट दिया, अगले दिन चंद सरकारी और गैर सरकारी मौलवी साथ लेके बैठ के वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुंह से कर रहे थे। मौलवी को मौलवी से लड़ाओ, डिवाइडेड बाई रूल। तो शुक्र है उलमा ने फौरन, मौलाना साहब ने और दूसरे उलमा ने कहा नहीं हम क्यों लड़े आपस में। ये अपनी नीयत में कोई फतूर नजर आ रहा है, सौदेबाजी करना चाहिए। जी हाँ, बस वो कोई आदत से मजबूर हो। बात हाथ होने की नहीं है जी, बात तो वास्ता ही नहीं चाहिए ना, कोई और से बाहर से फरिश्ते तो आएंगे। यहाँ तो मुझे लगता है बिलावल के साथ हाथ होगी, वो तो खामोश है ना। जब हाथ हो गया तो क्या क्या मेरे अब्बा ने की। कोशिश करेंगे कहना ना दें, इनको मौका ना दें हाथ करने का। कोशिश यही की जाएगी। एमक्यूएम का वफद आया था, वो बल्दियात के हवाले से कोई डिस्कस कर रहे हैं, उनको नहीं पड़ी है। हम आपको तस्लीम करते हैं, आप हमें तस्लीम करें। हम पाकिस्तान बनने से पहले के पाकिस्तानी हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कोटा सिस्टम लसानी बुनियादों पर बनाया गया था, हमें अपने हुकूक की खातिर इकट्ठा होना पड़ा। हम आपको तस्लीम करते हैं, आप हमें तस्लीम करें। कोटा सिस्टम लिसानी बुनियादों पर, शनाख्त की बुनियाद पर लगा था। उस वक्त की नस्ल को अपने हुकूक के तयन और अपने ख्याल की वजह से इकट्ठा होना पड़ा, वरना हम पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजदाद पाकिस्तानी थे, हम उन्हीं की औलाद। ये एलियन का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कोई शनाख्त भी मुझे नहीं मालूम कि वो आसमान से उतरी हो। ये महाजिर सकाफत दरअसल बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है। ये शहर पाकिस्तान की सकाफतों का मस्कन है। शायद एक नई सकाफत और उर्दू भी एक नई तरह की उर्दू सामने आ जाए। फड्डा, पंगा, ये तो लखनऊ के या आगरे के या दिल्ली के लफ्ज ही नहीं थे कि बिला वजह भाई पंगा क्यों ले रहे हो। हम भी ये कहते हैं। बहुत सारी तस्वीर 47 से फैसले लें। पजामा आपको खत्ते में हर जगह नजर आएगा। मुस्लिम लीग की इजलास देखें, पजामा नजर आएगा। पजामा के लिए जंग थोड़ी की है हमने। गुजरात का पजामा चौड़े पांचे वाला था, लखनऊ का तंग पजामा था, अलीगढ़ का पजामा अलीगढ़ कट वाला पजामा था। जब कराची में आ गए तो उन सब ने कोशिश की कि सबका पजामा एक जैसा हो जाए। मेरा ख्याल है हम जामे में रहना चाहिए, पजामे में रहना नहीं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। बनारस पुल पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान जाम बहक होने वाले नौजवान जमाल की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त उसके वालिद और साथी एनी शाहिद के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नज़ीर। तो उसके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, आप ये बताएं कि इसकी उम्र क्या थी और क्या करता था। इसका बच्ची का मेरे ख्याल से 30 साल उम्र है उसकी। ठीक है, ज्यादा 30 साल उम्र मेरा। उसकी शादी भी नहीं हुआ। आप उसके साथ थे तो क्या वाकया क्या पेश आया। गाड़ी तो हमने वैसे ही दे दी, दोनों ने बंदूकें निकाली, एक से मैगजीन गिर गए और दूसरे ने डर के हमारे गोलियां निकाली। 4 गोलियां वहीं पे एक साथ निकाली और एक गोली इसको लेके। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, अस्पताल लेके गए, फिर भी जिंदा था। अब्बासी अस्पताल वालों ने सेवल जना पे भेजा, वहाँ पे रास्ते में फौज। इस वक्त कब्रिस्तान के बाहर इनके तमाम दोस्त अहले खाना अजीज़ व अकारिब मौजूद है। उनका यही कहना है कि इस वाक़े में मुलव्विस जो अनासिर उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
एबटाबाद पुलिस ने लेडी डॉक्टर के कत्ल में मुलव्वस शौहर और सास समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं राजा हारून से। राजा हारून, बताइए क्या वाक़या है ये? जी एबटाबाद अयूब टीचिंग अस्पताल में एक डॉक्टर थी, मैरन नसा, लेडी डॉक्टर थी, जिसे अपने घर में जिसकी डेथ हुई और उसके खामंद और उसके दीगर जो ससुराली है उन्होंने इसको खुदकशी करार दिया। बाद अज़ां वालिद ने जब इसको शक हुआ तो उन्होंने एबटाबाद कोर्ट में एप्लीकेशन दी, 22A के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया और अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, इस बारे में वालिद का ये कहना है, मकतूला के वालिद का ये कहना है कि मेरी बेटी की जो कोठी है उसके नाम पर है और 100 तोले जो ज़ेवरात है मेरी बेटी को हमने दिया था वो ये हथियाने के लिए मेरी बेटी का कत्ल किया गया है, जबकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे जो दामाद था या उसके जो ससुराल थे उन्होंने इसको खुदकशी का रंग दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा हारून। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में 2 दुकानदारों में झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग, पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के वीडियो भी सामने आ गए। झगड़ा चाय के मामले पर हुआ, तल कलामी के बाद हाथापाई और फिर हवाई फायरिंग की गई। रवा साल लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने 56 लाख से ज्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान किए। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी करने वालों में मोटरसाइकिल सवार हमेशा की तरह सरे फहरिस्त है। तफसीलात बाबर खान की इस रिपोर्ट से जानिए। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने रवा साल 56 लाख से ज्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान किए। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी करने वालों में मोटरसाइकिल सवार हमेशा की तरह सरफरिस्त हैं। सिटी लाहौर मारा अतर का कहना है ट्रैफिक गाही मुहिम से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आई है, ताहम मोटरसाइकिल और चिंची वालों को भी कानून की पासदारी करना होगी। मेन बुलेवार्ड है, जेल रोड है, मॉल रोड है और जो अब हमारा फोकस है वो सारा फिरोजपुर रोड पे है। उस पे जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम रॉन्ग पार्किंग ना होने तो ये कुछ रोड्स को जिनको हमने पिक किया, मैं समझती हूँ कि उसमें बेहतरी आई। ट्रैफिक पुलिस ने 34 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए। चिंची रिक्शा के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चालान हुए, तादाद 11 लाख रही। लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर लाहौरियों के 17 लाख से ज्यादा चालान हुए। हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर लाहौरियों के 6 लाख से ज्यादा चालान हुए, ताहम हादसात में भी कमी आई है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा लेन लाइन डिसिप्लिन के ऊपर रहा। कोशिश ये है कि रोड के ऊपर जो ट्रैफिक चलती है वो एक डिसिप्लिन के साथ चले। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में ट्रैफिक पुलिस भरपूर किरदार अदा कर रही है, ताहम बेशतर रश वाले एरियाज में ट्रैफिक रवा दवा रखने में पुलिस नाकाम नजर आती है। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में साल 2024 मरीजों के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। अद्वियात, बेड्स, मशीनरी और एम्बुलेंसेज की कमी की शिकायत रही। देखते हैं मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। साल 2024 में अलाइड अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में सहूलतें न होने के बराबर रहीं, जबकि मरीजों की तादाद में हर साल इजाफा होता जा रहा है। अद्वियात, बेड्स, मशीनरी, एम्बुलेंस और अमले की कमी के साथ साथ MRI, CT स्कैन और एक्सरे मशीन भी अक्सर खराब ही रही, जिससे मरीजों की मुश्किलात बढ़ती रही। पूरा साल हमने इधर से मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन जो सस्ती मेडिसिन है वो हमें अंदर से दी जाती है और जो महंगी हमें बाहर से लेनी पड़ती है और मशीनें वगैरह भी खराब है, इतनी कोई सहूलत नहीं मिल रही है। आइज की प्रेशर चेकिंग वाली जो मशीन है OPD की, वो गुज़श्ता 3 साल से खराब। मरीजों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले साल 9 में हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाएगी जिससे तमाम महंगी अद्वियात और टेस्ट की सहूलतें अस्पताल में ही मुयसर आएंगी। कोई सहूलियात नहीं यहाँ मिलती है। यहाँ के टेस्ट भी जो होते हैं वो करते ही नहीं है, कहते हैं मशीन खराब है। अपने डॉक्टरों के जो क्लिनिक है वहाँ के टेस्ट लिख के हमें दे देते हैं। साल भर सरकारी अस्पतालों में मरीज, अद्वियात और बेड्स की कमी और टेस्ट न होने की वजह से ख्वार होते रहे। आने वाले नए साल में मरीज हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सेहत के लिए बेहतर इकदाम किए जाएंगे जिससे इनकी मुश्किलात कम हो सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, एयरवाई न्यूज, फैसलाबाद। जर्मनी में तेज रफ्तार कार क्रिसमस मार्केट में जा घुसी। हादसे में 2 अफराद हलाक और 68 जख्मी हो गए। हादसा मैग्डेबर्ग में पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जो 50 साल सऊदी डॉक्टर और 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर है। जर्मन हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि ड्राइवर ने जानबूझकर हुजूम पर गाड़ी चढ़ाई है। मुश्तबा हमले में 15 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। जर्मन चांसलर ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी हमदर्दियां मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ है। वजारत दाखिला ने अवाम को क्रिसमस बाजारों में इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत की है। सऊदी हुकूमत ने मुश्तबा हमले की मजम्मत की। सऊदी वजारत खारजा के जारी बयान में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जर्मन अवाम से इजहार यकजहती किया गया है। जर्मनी में 8 साल पहले भी क्रिसमस मार्केट को कार के जरिए निशाना बनाया गया था जिसमें 13 अफराद हलाक हुए थे। मैनचेस्टर एयरपोर्ट में पुलिस से झगड़े पर 2 पाकिस्तानी भाइयों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक वाक़े में किसी पुलिस अफसर पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। रवां साल 23 जुलाई को वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस अफसर को एक नौजवान को जमीन पर गिराकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। और खबर दें आपको, बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पीर को ना सुनाए जाने का इम्कान है। जरा ये बताते हैं कि 23 दिसंबर को फैसला ना सुनाया गया तो फिर जनवरी में फैसला आने का इम्कान है। इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, क्या लगता है, क्या वजह है कि फैसला पीर को नहीं सुनाया जाएगा? देखिए, मेरी इत्तला ये है कि बड़ी हाई लेवल के ऊपर इनकी बातचीत चल रही थी और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने पहले, वो आपको याद है, 3 केसेस धड़ धड़ करके इन्होंने फैसले टिका दिए थे, इद्दत के, साइफर दूसरा, और उसी स्पीड से वो फारिग भी हो गए कोर्ट में। तो इस बार फैसला ये हुआ कि जी जो फैसला है इसको बड़ी तफसील से, बड़ी बारीक बीनी से लिखा जाए ताकि उस तरह इनके साथ शर्मिंदगी ना हो और कोई लीगल चैलेंज विथस्टैंड कर सके ये। और अगर इसमें दिन भी लगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगने दें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए अब एक बड़ा केस है। और उनका ख्याल है, जब आप उनके लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो बड़ी एविडेंस है। खैर, कोर्ट में वो तो कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन क्योंकि इसके बाद अब इनके पास बड़ा केस कोई नहीं है, इसके बाद एक ही बड़ा केस रह जाएगा और वो भी शुरू भी नहीं हुआ, वो 9 मई का है। और इसलिए वो उसको अभी जल्दी नहीं लाना चाहता कोई भी, वो अभी कुछ माह लगेंगे। तो शायद गवर्नमेंट का ये ख्याल हो कि इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लिखा जाए कि कम से कम 2-4 माह तो लगे ना इसमें, 4-5 माह इसमें लगें, तब तक वो जनरल फैज वाली इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएं और उसका जाहिर है उसमें लिंकअप डाला जाएगा, इमरान खान को भी उसमें मुलव्वस किया जाएगा। तो वो नेक्स्ट बिग केस वो है। सो बिटवीन 9 में और अब ये आखिरी बड़ा केस 190 मिलियन केस का ही है खान साहब के ऊपर। सो गवर्नमेंट इसको बड़े ध्यान से डील करना चाह रही है। तो मालिक साहब, आपके सोर्सेस क्या बताते हैं कि फिर ये फैसला कब तक आने का इम्कान है? अगर बताया जा रहा है जनवरी, तो मिड जनवरी या एंड ऑफ जनवरी और अर्ली जनवरी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जनवरी में अब आएगा। सो 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी आ जाना चाहिए। और कोर्ट को कितना अर्सा चाहिए यार एक फैसला लिखने में। और यहाँ तो हम सुनते हैं कि फैसले वैसे ही लिखे हुए होते हैं, तो नोक पलक दुरुस्त करने में 10 दिन काफी होंगे मेरा ख्याल है। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब आपके वक्त के लिए। वनडे सीरीज में मिशन व्हाइट वॉश, पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। कौमी टीम केप टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंच गई। शाहीनों को 3 मैच की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।